احکام الہی۔ یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ جوانی کا زمانہ طاقتور، منہ زور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے اس وقت اس میں ضد بھی شامل تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم کو دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس عمر میں ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک دن بابا سے یہ سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیں، اور تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں زندگی کی، یہ بتائیں یہ جو برے برے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت سے ایسے مظالم ڈھائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں پر کہ ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور بہت اونچے درجوں کے ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ رتبے حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے رہے، اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور ہم بڑے مایوس ہوئے اور واپس اپنی کوٹھڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے طور پر غور کرنے لگے کہ یہ عجیب ہے، یہاں بھی 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی عزت افزائی ہے، اور جو اچھے والے ہیں وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیوں سزا ملتی ہے زندگی میں؟ ایک 3 سال کا بچہ ہے اور وہ باہر نکلا سڑک پر اپنی گیند کو پکڑنے کے لیے، اور تیزی سے ایک کار آتی ہے اس کو کچل جاتی، اب اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرح کے بے شمار سوالات جو ذہن میں آتے تھے، جب بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، اور ان کا جوانی اور بڑھاپے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتدریج آتے چلتے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہے وہ ضرور ان سوالوں کو فیس کرتا ہے اور ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ ایک روز امی اور میرا ساتھی بہت بے چین ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جو ہمارے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنے بھاویں بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سر یہ راز کھول کر ہمیں بتائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں، آپ لوگوں نے ایک عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے کہ آپ فعل اللہ کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے، لیکن آپ صرف اس کے احکام تک رہیں، اور فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا سر یہ تو پھر کمال کی بات ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم کو کالجوں یونیورسٹیوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں، باقاعدہ ڈسکس کریں، ڈائلاگ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا اور ان کا یہ رشتہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ تھی۔ پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرا اور ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو یہ محسوس کیا کہ واقعی ہماری توجہ فعل اللہ پر زیادہ رہتی ہے، اور ہم خواہ اس میں دخل دینے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کلفٹن گئے، ارادہ تھا کہ ساحل پر پکنک بنائیں گے، بالکل پانی کے قریب جا کے ریت میں۔ وہاں جا کے دری بچھا لی، سامان رکھ دیا اس کے اوپر، تو میں نے کہا تھا کوئی ایسی لہر بھی آئے گی جو ہمارے اوپر چڑھ جائے گی، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ہم بھاگ چلیں گے، تری کھینچ لیں گے، بڑا مزہ رہے گا۔ جب میری بیوی سارا سامان لگا رہی تھی چائے وائے کا، تو میں نے دیکھا کہ اس دری کے اوپر ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ، سمندر کے پاس گھونگا، سپی، سنکو ہو سکتے ہیں، یہ چیونٹی کا یہاں کیا کام؟ یہ کدھر سے آ گئی؟ پھر میں نے غور کر کے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے سوچتا رہا کہ یہ لالو کھیت سے چلتی چلتی 13 دن کی مدت میں سفر کر کے آج ساحل پر پہنچی ہے، لیکن پھر میں سوچنے لگا اس نے کیوں اتنی مصیبت اختیار کی؟ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ بیچاری بہت بے چین تھی، گھر میں بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ میں جو یہاں پر رہتی ہوں تو میں جا کر سمندر کی حقیقت معلوم کروں گی۔
तो ये समंदर की गहराई और उसकी वसअत देखने के लिए यहाँ तशरीफ लाई है और कहती है कि मैं समंदर को अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ। तो यही कैफियत इंसान की है कि वो अल्लाह को उसकी सारी गहराई और गहराई को एक चूंटी से भी कमतर होने के बावजूद जानने की आरजू रखता है, जानने का तजस्सुस और शौक होता है। तो हम बैठे रहे, खैर एक लहर आई है और इस चूंटी को, हमारी जाय नमाज को और हमारी सब चीजों को भिगोकर गुजर गई। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वाकई अल्लाह जो चाहे करे, जिस तरह से मुनासिब समझे, लेकिन उसके बावस दिल के ऊपर एक बोझ जरूर रहता है। और आप भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये सवाल करते रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने अजीज़ अकारिब के साथ। तो हमारे बाबे ये कहते हैं कि अगर वाकई तुम सच्चे हो और तुम जानना चाहते हो और इस राज को मालूम करने के ख्वाहिशमंद हो, सिर्फ ये नहीं सिरी पाए पाए खाते हुए या निहारी खाते हुए या ब्रोस्ट खाते हुए, अगर आप सचमुच जाना चाहें तो फिर इसका एक नुस्खा है, बड़ा सीधा और पायदार नुस्खा। वो ये कि आप अहकाम इलाही के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हों। जूं-जूं आप अहकाम इलाही के अंदर दाखिल होते जाएंगे और इस मुहीत के अंदर अपने आप को समेटे जाएंगे, आप आप पर असरार इलाही जरूर वाजे होंगे। जिस तरह से आप एटम का राज मालूम करते हैं कि ये छोटा सा एटम जो आंख को भी नजर नहीं आता, खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता, वो किस तरह इतना बड़ा और ताकतवर हो सकता है कि सारे इलाके को, मुल्क को, जगहों को, शहरों को फाड़ कर रख दे और मलिया मेट कर दे। अकल में आने वाली बात नहीं है कि सबसे पहले आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ें, फिर आप लेबोरेटरी में आए और लेबोरेटरी में आकर इस पर तजर्बा करें। फिर उसके बाद आप कोहोटा जाएंगे, फिर कोहोटा में जाकर उनके साथ काम करें। आप पर शीशे की तरह ये वाज़ेह होने लगेगा कि ये कैसे अमल होता है। इसी तरह अल्लाह के अफ़ाल को जानने के लिए अल्लाह के अहकाम को मानना ज़रूरी है। ये रास्ता है। जब आप अहकामात की लेबोरेटरी में आ जाएंगे, फिर ये सारी बातें आप पर आसानी के साथ वाज़ेह होती जाएंगी और वाज़ेह यूँ होती हैं कि इंसान जो है वो कितनी भी कोशिशें क्यों ना करे, एक सिंगल बेड का रेडियो सेट है, एक सिंगल बैंड का रेडियो सेट है। इस पर एक ही स्टेशन बजता है और इस जगह जहां हम बैठे हैं बेशुमार और लहरें भी हैं और मुल्क भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो हूँ ही सिंगल बैंड का रेडियो। तो मुझ पर वही एक बजेगा। तो जूं-जूं आप अहकाम इलाही में दाखिल होते जाते हैं, आपके बैंड में इजाफा होता जाता है और वो सिग्नल्स जो आपको वैसे सुनाई नहीं देते, वैसे महसूस नहीं होते, वैसे उनका एहसास नहीं होता, वो इर्ताश आपके अंदर दाखिल होने लगेगा। वो असरार फटाफट आपके ऊपर खुलते चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त रुक जाएंगे जिस वक्त आप अहकाम इलाही से जरा भी सा भी मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे। हम जैसे आदमी, छोटे से आदमी, बिल्कुल बेहैसियत, हमने तो ऐसे राज़ों को ना जानने की कोशिश की, ना ये हमारी हैसियत है, ना हमारी बारात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने देखे और बहुत करीब से देखे जिन्होंने इस बात को दिल में तहैया करके अपनाया। पिछले दिनों मेरे बच्चे मुझसे लेडी डियाना की बात कर रहे थे। आप जानते हैं वो मर गई, बेचारी फौत हो गई, एक्सीडेंट का शिकार हो गई। अब जनाब उसका जो जनाजा चला है तो कुल दुनिया ने देखा, हर टीवी स्टेशन से। इस वक्त अगर आपके पास ऐसी सलाहियत होती कि जल्दी जल्दी दुनिया के स्टेशन बदल के देख सकते, जैसा कि हमने यहाँ अपने पीटीवी पर लाहौर में देखे, हमने देखा सब जगह पर एक उसी का जनाजा चल रहा था। सारी दुनिया में यानी राउंड द ग्लोब, सारे कुरे अर्ज पर हम सब घर में बैठे हैरान हो रहे थे और उससे मरूब भी थे। और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि देखें, चूंकि उसका रवैया मखलूक खुदा के साथ अच्छा था और उसने मरीज बच्चों को अपनी गोद में बिठाया था जब यहाँ आई थी, और दुनिया में बड़े उसने काम किए थे। जो माइंस, बारूदी सुरंगें थी, उनको दूर करने में भी मदद दी थी उसे, जिसे अल्लाह ने रुतबा दिया है कि उसका जनाजा इतना बड़ा है। और रॉयल्टी जो शहनशाहियत है, वो अपनी बगी से पैदल उतर कर चल रही है। गालिबन जिंदगी में यह पहला मौका था कि रॉयल्टी उनके पीछे पैदल चले आ रहे थे।
तो सब जब उसकी तारीफ कर रहे थे तो मैं भी मरूब था उससे, और थोड़ा सा मुतासिर भी था कि शायद अभी उसे मरना नहीं चाहिए था। और मैं इस बात का ऐनी शाहिद भी था कि उसकी तबीयत और उसका मिजाज बहुत अच्छा था। एक शाम ये लेडी डियाना हमारे घर आई थी, तो हम मामूली से लोग हैं। वहाँ एक मामूली से ड्राइंग रूम में जब वो आई है तो बत्तियां बुझ गई थी। हमारे यहाँ लोड शेडिंग तो होती है, तो हम सब बड़े परेशान थे। मेरी बड़ी आपा जो थी कहने लगी कि हाय हाय शहजादी आई है, इस पर बड़ा जुल्म हो गया, बत्तियां बुझ गई, शर्मिंदगी भी होती है। तो वो कहने लगी, नेवर माइंड आपी आपा, नो इट्स नथिंग, कैंडल विल डू, कोई बात नहीं, मोमबत्ती जला लें, कोई बात नहीं। तो हमने कहा भाग के जा, जल्दी से कैंडल लेकर आ साबरी की दुकान से। तो मुलाजिम बेचारा भागा भागा गया तो आकर कहने लगा, साबरी कहता है बत्तियां पता नहीं कहाँ पड़ी हैं, अंधेरा बहुत छाया हुआ है, पता नहीं मोमबत्तियां कहाँ रखी हुई हैं। तो वो बेचारा वापस आ गया। तो फिर उसने कहा, कोई नहीं, अंधेरे में हमने बातें ही करनी है ना, बातें करते हैं। तो हम सब बहुत मुतासिर हुए कि इतनी बड़ी शख्सियत है, ऐसे ही बात करती चली जाती है। ये एक जाती मुशाहिदा भी था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था, मैं अपने साथी देखने वालों से, अपने बच्चों से, अपने बेटे पोतों से एक ही बात कह रहा था कि देखो, ये अल्लाह की शान है और अल्लाह की मर्जी है, और वो जिसे चाहता है वैसे करता है। इसमें ये खूबियां जो आप गिनवा रहे हैं, उनका होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। वो बादशाहों का बादशाह है, वो जैसे चाहे कर सकता है, उसको ये पसंद है। उसने तुमको दिखाया है कि देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि डियाना की दूसरी जिंदगी से हम सब लोग वाकिफ हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन ये अल्लाह का एक फेल है, और वो कर रहा है। लेकिन मेरे लिए अल्लाह का हुक्म और है। ये मेरी रोल मॉडल नहीं है। मेरी रोल मॉडल हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये नहीं हो सकती। मैं देखूंगा, उसका जनाजा चला जा रहा है, बड़ी शान है उसकी, लेकिन रोल मॉडल नहीं है। मेरे बच्चों के चेहरों पर बड़ी उदासी सी हुई कि कितनी बुरी बात है। ये काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अल्लाह का पसंदीदा होना एक मुख्तलिफ बात है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ और गमज़दा यूं हुआ कि सारे बच्चों ने मेरी बहुत ठुकाई की कि आप बाबा कमाल की बात करते हैं, बहुत सख्त दिल आदमी हैं। तो मैंने कहा, या अल्लाह, तो कुछ ऐसे कर कि मेरी इज्जत रह जाए। तो अल्लाह ने मेरी बात मान ली। कुछ छठे सातवें दिन मदर टेरेसा फौत हो गई। अब मदर टेरेसा ने तो 80 बरस की उम्र तक शुरू से लेकर लोगों की बेशुमार खिदमत की थी, और उनको हर तरह से मदद और आसानी दी थी, और मरीज कोड़ी अपने हाथ से उठाकर लाई थी। कलकत्ता की सड़कों पर मरते हुए, तड़पते हुए जब वो फौत हुई है मदर टेरेसा, तो मैं उसका जनाजा देखने के लिए भी रुका, और मैंने टीवी ऑन किया, बीबीसी लगाया, और 2-3 स्टेशन मदर टेरेसा का जनाजा, ख़वातीन हजरात। ऐसा मामूली, ऐसा छोटा था कि मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ ये सोच रहा था कि या अल्लाह, इसके जनाजा तो ऐसा गैर मामूली होना चाहिए था। नोबेल प्राइज मिला है मदर टेरेसा को अमन का, और उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया इंसानियत पर। लेकिन ये तेरी शान है, तू जो चाहता है करता है। अहकाम इलाही में दाखिल होने से वो फ्रीक्वेंसी जरूर मिलती है। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा जिसके जोर पर आदमी अपने दिल और जहन पर उठे हुए सवालों को जांच सकता है, आंक सकता है, परख सकता है, और उसको उसका जवाब मिलता रहता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अजीब सी रह जाती है कि कई दफा यूं भी होता है कि एक बहुत बड़ा शख्स और एक बड़े मुकाम पर पहुंचा हुआ आदमी, अहकाम इलाही में पूरे का पूरा उतरा हुआ इंसान, कई दफा किसी कोताही की वजह से उससे किनारा कश हो जाता है, जानते हुए या ना जानते हुए, अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी के खिलाफ भी फिसल जाता है। तो उसके साथ जो होती है वो भी अपनी तर्ज की एक नई चीज है। एक बहुत बड़े सूफी थे, वो अपने बच्चों की और अपने मुतल्लिकीन की और अपने मुरीदीन की ट्रेनिंग के लिए डेरे से निकलकर बाहर जंगल में चले गए। एक ऐसे जंगल में जिसके करीब समंदर था।
ले जाकर उनको जंगल के मनाजिर भी दिखाना चाहते थे और अल्लाह और जंगल का और समंदर का रिश्ता भी कुछ अपने अंदाज में समझाना चाहते थे। उनको ले जाना इस लेबोरेटरी में बहुत ज़रूरी था। मुरीदीन की एक लंबी जमात थी। वो बाबा जी जो थे वो एक दरख्त के टुंड पर बैठे उनसे बातें करते रहते थे। अचानक एक शाम ऐसा हुआ कि एक और बुजुर्ग वहां आ गए और उन्होंने आकर उस सूफी को अस्सलामु अलैकुम कहा। ये सूफी साहब जो मुरीदीन की फौज लेकर गए थे उठकर खड़े हो गए और दस बदस उनके सामने झुके और उनके घुटनों को हाथ लगाया। तो ये जो उनके मुरीद थे वो तो बेचारे परेशान हुए कि ये कौन साहब हैं जिनके आगे हमारा पीर जो है, हमारा गुरु जो है, हमारा मॉनिटर जो है, इस तरह से झुकता है। तो वो उनके साथ मोहब्बत और अदब से बातें करते हैं। एक मरीज जो था मेरे जैसा, उसके दिल में खुदबुद हो रही है और बदस्तूर हो रही है। उसने कहा उसकी कुछ खिदमत होनी चाहिए। ये वक्त के बहुत बड़े वली कुतुब होंगे। मुरीद अपने पीर साहब को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, हुजूर ये कौन साहब हैं? उन्होंने कहा, ये वलियों के वली हैं और हम खुश हैं कि उनसे हमारी मुलाकात हो गई। और ये अमीरुल बहर हैं, ये समंदरों के कुतुब हैं। समंदरों की ड्यूटी उनको सौंपी गई है। हम इत्तफाक से समंदर के किनारे आकर बैठे हैं तो ये हमसे मिलने के लिए आ गए हैं। उसने कहा, जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। इससे तो हमारी तरक्की होगी और इनसे कुछ पूछेंगे। वो बोले, एक बात है बरखुरदार कि तुम्हारी तरक्की नहीं ये कर सकते, क्योंकि ये बड़े दुख की बात है और मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रोता है कि इनके कप जो हैं, कंधों पर जो स्टार लगे होते हैं वो उतर चुके हैं और उनको इसका इल्म नहीं, और वो अभी तक अपने आप को अमीरुल बहर समझते हैं। जब ये बात सुनी तो उस मुरीद ने तो वो रोने लगा कि इतना बड़ा दर्जा मेरा पीर उनको दे रहा है, उन बेचारों को पता नहीं। वो इतनी जोर से रोया कि उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रखा कि तू खामोश रह, वरना उनको इल्म हो गया तो बड़ी तकलीफ होगी। खैर वो मिले बैठे उनके साथ बातें की। फिर उन्होंने कहा, हमको इजाजत दें, हमें अपनी ड्यूटी पर जाना है समंदरों में। तो मुरीद ने कहा, मैं उनको छोड़ाऊं? उन्होंने कहा, जरूर, ये तो हमारा फर्ज है। वो पीछे पीछे उनके दस बदस चला और वो जो अमीरुल बहर थे वो आगे आगे चले। तो जंगल में जाते जाते जब घना जंगल आया तो उसने कहा, आगे आ जाओ मियाँ हमारे साथ। तो उसने कहा, नहीं हुजूर, ऐसे ही ठीक है। जब बात की तो उसने जोर से चीख मारी और रोने लग गया। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम रोने क्यों लग गए हो? उसने कहा, हुजूर मेरा दिल भर आया है और मेरे ऊपर ऐसी अफताब पड़ी है कि मैं अर्ज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, बेफिक्र रहो, हमसे बात करो, हम तुम्हारे पीर से बात करेंगे। कोई उलझन है? उसने कहा, हाँ हुजूर, उलझन है। उन्होंने कहा, क्या उलझन है? तो उसने कहा, हुजूर उलझन ये है कि आप अमीरुल बहर हैं और आपका तसर्रफ है समंदरों पर, ये आपकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा, हाँ ये अल्लाह का फजल है हम पर, लेकिन हुजूर आपके पब उतर चुके हैं, आपके स्टार्स कोई नहीं हैं। अब आप इस ड्यूटी पर नहीं हैं, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, तुम क्या बकते हो? उसने कहा, मुझे ये फरमाया गया है जो अर्ज किया और मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उन्होंने भी जब इधर उधर देखा, दोनों कंधुओं पर तो वाकई उनके स्टार्स नहीं थे वहां। उन्होंने खाक जमीन से उठाकर सर में डालना शुरू कर दी और वो वावेला किया कि जंगल में परिंद चरिंद सब परेशान होकर शाखों से उड़ गए। उन्होंने कहा, ए प्यारे, ए नौजवान, तुमने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है। अब मेरे पर एक मेहरबानी और करो कि मेरे पाँव में रस्सी बांधो और मुझको घसीटो जमीन पर, इस जंगल में, इस कड़ी सरजमीन पर, जहाँ कीकर के कांटे और क्या कुछ नहीं है। मैं भी वावेला करता हूँ, तू भी कर, के अल्लाह के काम ना मानने वालों का ये अंजाम होता है जो मुझसे बेख्याली में हो गया। उसने कहा, हजूर मैं तो ये बेअदबी नहीं कर सकता, आप मुझे कत्ल कर दें, मैं ये नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, मैं कभी तुझसे उसका बदला ना लूंगा। तो वो तो बेचारा मजबूर हो गया।
उसने कोई सख्त बेल तोड़ी, उसको बल दिया, हुक्म के मुताबिक उनके टखनों पर बांधा, कंधे पर बेल को रखा और चीखे मारता हुआ खुद भी उनको बुत की तरह घसीटता हुआ चल पड़ा जंगल में। और वो रोते जाते थे और आहो बका करते जाते थे और फरियाद करते जाते थे कि हमारी कोताही जो गुनाह है माफ किया जाए। जब वो चलते हुए आ रहे थे तो बताने वाले बताते हैं जितने परिंदे दरख्तों में बैठे थे उन्होंने भी चीखो पुकार शुरू कर दी और रोना शुरू कर दिया। और जंगल की हिरनियां और हिरन और शेर और चरिंद परिंद खड़े हो गए और मुंह ऊपर उठाकर कहने लगे, या बारी ताला, उनको माफी अता फरमा। हम तेरी मखलूक हैं, बेकार से मखलूक हैं। हम तो जानवर हैं, लेकिन ये हजूर लेकिन तेरे हजूर ये तो दरखास्त कर सकते हैं कि उसको माफी अता की जाए। उनका रोना और चीखना और परिंदों और जानवरों का अल्लाह को पसंद आया, तो फिर उन्होंने कहा, जा इसको माफ किया। चुनाचे उठ के खड़े हो गए तो वो आ गए अपने ओहदे पर वापस। तो उस मुरीद ने कहा, हजूर मैं तो खुशी से बेचैन हुआ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो जाने लगे समंदर का किनारा नजदीक आ गया, क्योंकि अब उन्होंने अपनी ड्यूटी पर हाजिरी देनी थी। मुरीद ने कहा, हुजूर मेरी हैसियत तो नहीं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आपसे क्या कोताही हुई है, क्या आपको याद है? कहने लगे, चंद रोज की बात है कि मैं समंदरों में अपनी ड्यूटी देने जा रहा था, कश्ती में बैठा था और हुक्म खुदाबंदी से चल फिर रहा था। बड़ी तेज बारिश होने लगी समंदर में, तो मैंने कहा, या बारी डाला, इस बारिश को यहाँ जाया करने से क्या फायदा? भरे समंदर पर यह बारिश अगर सूखे मैदानों में हो तो कुछ फायदा हो, लोगों को अनाज मिले, फसलें उगें, बस इतनी सी बात मैंने राय दी थी। फेल अल्लाह के ऊपर मैंने तनकीद की थी। तो ख़वातीन और हजरात, फिर ये बात होगी, फेल अल्लाह और हैं, अहकाम अल्लाह और हैं, और हम सब अहकाम इलाही के पाबंद हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।